नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक 26 साल की चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो लोग ज़्यादातर लोग जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी मुश्किल उठानी पड़ती है। 26 साल की लड़की इसलिए मर जाती है हार्ट अटैक से क्योंकि उसका दफ्तर उससे उसकी जान ले लेने तक अमानुषिक ढंग से शोषण कर रहा था, उससे काम करा रहा था। ये कहानी भारत की है और भारत के जो टॉप 4 कंसल्टेंसी फर्म हैं उनमें से एक अर्नेस्ट एंड यंग की है। और ये वो अर्नेस्ट एंड यंग है जो साल दर साल तरह तरह के सर्वे करता है और वर्किंग कंडीशन पे कमेंट करता है। इसी ने हाल में सर्वे करके बताया था कि किस तरह से कोविड के बाद में हिंदुस्तान के दफ्तरों में वर्किंग एनवायरनमेंट बढ़िया हो गया है और वर्किंग एनवायरनमेंट के नाम पे ये अपने कर्मचारियों को बैल से काम कर रहा था ना आदमी, बैल से खेत में, उसको भी शाम को बांध देता है। कोल्हू में भी बैल होता है जिसकी आंखों पे आगे पट्टियां बांध दी जाती हैं, उसका भी एक समय आता है जब वो आराम कर लेता है। ये लोग 32 घंटे तक उन लड़कियों से काम कराते हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ इसलिए मेहनत की कि हम पढ़ लिख के सीए बन जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे तो ये बेहतर प्रोफेशनल होंगे, अच्छा जीवन होगा, अच्छे पैसे होंगे। और ये मल्टीनेशनल कंपनियां, भारत की सरकार तो चरणों में झुकी हुई है। आप भारत के नागरिकों का जो करना है कर लीजिए। मैं आपको कई उदाहरण दे चुका हूं, मारुति में जो हुआ वो आपको बता चुका हूं, फॉक्सकॉन जो हिंदुस्तान में एप्पल बनाती है उसका क्या हाल है बता चुका हूं, और अभी ये जो माइक्रोचिप बनाने का प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें भी फॉक्सकॉन की क्या भूमिका है इसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। चीन में इस कंपनी के खिलाफ, चीन जहां पे पहले ही कर्मचारियों का खून पिया जाता है, उस चीन में इस कंपनी के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो चुका है, मामले उठ चुके हैं। राहुल गांधी ने इस लड़की के परिवार वालों से, उसका नाम एना है, एना सेबेस्टियन, उसके परिवार वालों से बात की और उन्होंने कहा कि इस मसले को हम उठाएंगे। AIPC के चेयरमैन जो हैं प्रवीण चक्रवर्ती, वो वहाँ गए थे, उन्होंने वहाँ ऐसे मोबाइल लिया, मोबाइल पे राहुल गांधी लाइव थे, उन्होंने बात कराई। वीडियो देख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। She got selected to CA in this February only, last February only. She got placement in EY Pune. Work atmosphere was it very toxic? Yes, she was always saying they had very long working hours. Norms or anything, how many hours you have to work, or you have to work Saturday. They have to work continuously, night, Saturday, Sundays, no restrictions. The children have to work like that. Mainly the young employees, the new ones. Children, they are new. They are not able to speak up so much. My daughter just joined them, so she had that restriction. She couldn't speak up so much like the older employees. Children think that they have to work so hard. This is how they should work, and they try their best to do everything. They don't have time for anything. They don't have time to sleep. They don't have time. My daughter, she didn't even have time for any of her personal needs. After she passed away, when my nephew went there to take her things from her room, he was saying, "No, shocked. She has no time to wash her clothes. Half the clothes were in a bucket in the soap water. Half the clothes were lying up. She had no time even for personal things. She didn't have time. She called me every day at night. She said, "Amma, I can't speak. I'm dead tired. I'm going to sleep." Even when she comes back from office, she just drops on her. She's so exhausted. Any support system as a company, any people who she could talk to counsel her, video or nothing like that? No, Actually, her manager was the counselor. That's what
That's what we came to know recently. After she passed away, her senior manager told us, Anna also, her workings were brilliant. She would have reached the top. So I told him, my child is not here now to hear all this. You should have told her when she was alive that she was doing well. If someone had told her properly that her workings were okay, that she was doing well, at least she would have had that confidence. She was not told? No, was not nothing. told. Her manager, Nobody told her. Nobody told her. She said she does not want this to happen to any other working professional ever again. Any other child, no parent should go through this. What we are going through. Nobody should get same such experience in future. Rahulji, what I have to say is, only in India children are subjected to such torture. If it's outside India, will they ask their employees to work like this? No work timings, no nothing, no schedule, no nothing. Will they ask the employees to work like that? No. Only in India, they say that we have received freedom in 1947. But our children are still working like slaves. Even now they are working like slaves. Children who study so hard to reach where they are, they put through so much slavery. Why is it happening in our country like this? Why are our children made to suffer like this? How hard they work to reach where they are. Yes, Rahul. You know, I think what Brian is saying is correct. Yeah. That you should also think about why is it that rules for these companies are different in other countries and are different in India. That's one reason that Parliament will be happy to do so. Yes, they would. We like to raise the problem in the parliament. That's also be a request from you, Davilji. I would be happy to do that. It would be an honor for me. Oh. We will. And if there is any other help I can give, please let me know. Okay. Yeah, and we're fully with you. Praveen is there, I'm there, and however we can support your calls, we're happy to do so. Okay. And Thank you. whatever we can do, we're there for you. Much love to both of you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. अब इस बातचीत में दो चीजें, एक तो मैं राहुल गांधी को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करूंगा कि एक विपक्ष के नेता होने के नाते सिर्फ चुनाव जीतकर चले जाना विपक्ष का काम नहीं है, और चुनाव के बाद में जनता की सुनवाई करना सिर्फ सरकार का ही काम नहीं है, विपक्ष के लोगों का काम है। जिसको कोई नहीं सुन रहा उसकी सुनवाई विपक्ष करे, और राहुल गांधी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने सेबेस्टियन के परिवार से बातचीत की और एक वादा किया कि वो एक हेल्पलाइन बनाएंगे जिस पे कॉरपोरेट सेक्टर में जो लोग काम करने वाले लोग हैं उनकी समस्याओं को वो अपने पास रख सकें। एक हेल्पलाइन बनाएंगे जिसमें कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग अपने दुख दर्द समस्याएं बता सकें। कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की दशा ये है कि हम सह भी नहीं सकते और किसी से कह भी नहीं सकते। जो बड़े बड़े अखबार के चैनल हैं, चाहे वो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, उनके अंदर काम करने वाले लोग जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसको या तो सह लें या माई वे या हाईवे। उनके पास अपनी बात कहने का कोई हक नहीं है। ये आत्महत्या करने और मर जाने के मामले सिर्फ यहीं से नहीं आ रहे हैं, अलग अलग मीडिया कंपनियों से भी कभी कभी आते रहते हैं। खैर, इसके बाद में शशि थरूर ने कहा कि हम 5 वर्किंग डे बनाने के लिए प्रस्ताव लेके आएंगे। और ऐना की मौत 19 मार्च को उसने ये कंपनी ज्वाइन की थी, अर्नेस्ट एंड यंग, और 6 जुलाई को उसके माता पिता उससे मिलने पुणे गए तो उसने सीने में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टर ने बताया कि ऑफिस के वर्कलोड के कारण ऐना परेशान है, और उसके बाद उनकी बेटी इस हालत में भी उनके माता पिता से घर पे मिल के फिर दफ्तर में चली गई अपना खून पिलाने के लिए। ये कंपनी का शोषण है। क्या क्या समस्या अर्नेस्ट एंड यंग में है ये मैं आपको बताता हूं, जो लगातार उठती रही हैं। 16 से 18 घंटे कर्मचारियों से काम कराया जाता है, और पीक टाइम पे कभी कभी जब कोई ज़्यादा ऑर्डर होता है या आपके जो क्लोजिंग का टाइम होता है 32 से 32 घंटे तक उनको वहाँ काम करना पड़ता है। 32 घंटे
वीकेंड में भी कर्मचारियों को कंपनी में भरना पड़ता है, हफ्ते की एक दिन छुट्टी भी नहीं मिलती। और तकनीकी कारणों से ऐसे मोबाइल, ईमेल, व्हाट्सएप और एमएमएस के जरिए कर्मचारियों को 24 घंटे उपलब्ध रहने को कहा जाता है। यानी 24/7 आप अपने मोबाइल पे उपलब्ध रहेंगे, व्हाट्सएप पे उपलब्ध रहेंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी आपको बुला लिया जाएगा। अगर ये कंपनी जर्मनी में काम कर रही होती, उसको इतना चाबुक पड़ते ना, ये अर्नेस्ट एंड यंग अपना नाम भूल जाते। जर्मनी में ड्यूटी आवर्स के बाद आप किसी कर्मचारी को फोन नहीं कर सकते। ये हद है। और ये सब हमारे देश में हो रहा है, श्रम कानूनों के होते हुए हो रहा है। सब आंख मूंदे बैठे हैं, इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान में मजदूर की आवाजों को घोंट दिया गया है। ट्रेड यूनियंस बंद हो गई हैं, उनको इतना व्यवस्थित तरीके से बदनाम किया। उसके बाद संस्थानों ने ट्रेड यूनियन में शामिल होने वालों पर सख्ती की और सरकार ने ढिलाई की। नया भारत बनाना था मनमोहन सिंह जी को, नरसिंह राव को, और मोदी जी उस नए भारत को महान भारत बना रहे हैं। और इस पूरे नए और वर्तमान भारत की सिर्फ एक ही हकीकत है कि मुट्ठीभर पूंजीपति जैसे चाहे वैसे करें और आम नागरिक मरे। ये लड़की सीए थी, इसलिए भी इस पर थोड़ी आवाज उठ गई। कोलकाता की लड़की डॉक्टर थी तो हलचल उठ गई। आम मजदूर जो है उसका क्या होता होगा, उसकी आप कल्पना कर सकते हैं। प्रमोशन, बोनस और बेहतर पाने के नाम पर लगातार हायर परफॉर्मेंस के लिए दबाव बनाया जाता है कर्मचारियों पे। देख भाई अप्रेजल आ रहा है तो क्या करूं, बोले तोहफो कबूल करो बोल। यह दशा है, कार्य संतुलन की कमी है, वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है। परिवार काय का परिवार, घर काय का परिवार। और खासतौर पर जो नए और यंग प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी दिक्कत ये होती है कि अभी नए नए भर्ती हुए हैं कंपनी में, अभी साल 6 महीने के अंदर ही अगर नौकरी चली जाएगी तो अगली कंपनी को जाके हम क्या मुंह दिखाएंगे। वो बोलेगा अच्छा 6 महीने में आपने क्यों छोड़ दिया, हमारे यहाँ भी, हम तो खून तो हमारे यहाँ भी पीते हैं, जो घर फूके आप ना चले हमारे संग। इसी तरह से ये मैं जो बातें आपको कह रहा हूँ ये प्रॉपर पब्लिश हुई हैं। और इसी तरह से छुट्टियाँ नहीं देना, ये सब 15 अगस्त 26 जनवरी को भी काम करो। जो बिग 4 कंपनियां हैं उनकी जो स्थितियां हैं उनके बारे में जो मैंने आपको बताया, जैसे ओवरवर्क, ये शिकायतें बाकायदा सुनाई जाती रही हैं। और 2020 में भी इसी कंपनी में एक आत्महत्या हो चुकी है। यानी उस आदमी ने जान दे दी और उसका भी कोई असर इस देश के सिस्टम पे नहीं हुआ। वो कंपनी वैसे ही कर्मचारियों को मशीन के अंदर उनका खून पी रही है और कोई रोकने वाला नहीं है। नेताओं के पास डायलॉग है, भाषण है, बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े सपने हैं। और जिस दिन ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है विकसित देश बन जाएंगे, उस दिन तो पता नहीं है क्या करेंगे जब आज ये हालत है। क्योंकि सारे कानूनों को शिथिल करते जा रहे हैं, लेबर लॉज कम कर दिए, सारी चीजें प्रो कॉर्पोरेट कर दी गई हैं। अगर आप खाली अर्नेस्ट एंड यंग पे जाएं तो 2020 में मैंने आपको बताया, बिजनेस इनसाइडर, द गार्जियन, फाइनेंशियल टाइम्स, इस सब ने रिपोर्ट किया था कि अत्यधिक घंटे के लिए काम का प्रेशर इनके ऊपर है। टाइम्स ऑफ इंडिया, हाफ पोस्ट और ईवाई ने कर्मचारियों की आत्महत्या की खबर दी थी और बताया था कि कैसे एक कर्मचारी ने अधिक बोझ के कारण आत्महत्या कर ली। 2021 में सीएनबीसी और फोर्ब्स ने डिटेल्ड रिपोर्ट छापी जिसमें बताया कि वर्क लाइफ बैलेंस के मामले में यह कंपनी कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार करती है। 2022 में इकोनॉमिक टाइम्स और हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में बाकायदा इसके ऊपर रिव्यू लिखा गया और कहा गया कि ये जो फर्में हैं इनका जो वर्क कल्चर है वो बेहद घटिया है और सरकारें कर्मचारियों की भलाई के लिए कुछ नहीं कर रही हैं, उनका खून पीने के लिए छोड़ दिया गया है। 2023 में भी समस्याएं लगातार हैं और अब ये मामला 2024 का आपके पास आ गया। और कर्मचारियों को कैसे टॉर्चर करते हैं, सिर्फ ज्यादा काम करा के टॉर्चर नहीं करते हैं। उन कंपनियों में तरह तरह की चीजें हैं, जैसे महिलाओं के अधिकार, महिलाओं को कम तनख्वाह मिलेगी, दूसरे को ज्यादा मिलेगा, उनके करियर में रुकावट लगाते हैं। अगर आप शादी करने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं तो ये कंपनियां आपको हतोत्साहित करेंगी, बच्चे पैदा मत करो, क्योंकि बच्चे पैदा करोगे तो मैटरनिटी लीव मांगोगे और आपको उसी तरह से अगर आपने मांग ली या ले ली तो आपको प्रमोशन, ग्रोथ वगैरह में नुकसान उठाना पड़ेगा। बाकायदा फॉर्च्यून मैगजीन ने इस पे आर्टिकल लिखा था। इसी तरह से विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों में भी समानता की कमी है, जिसके कारण मानसिक तनाव रहता है।
मानसिक स्वास्थ्य जो है वो, मानसिक समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं इन कर्मचारियों में, जिनका नतीजा हमने वो आत्महत्या वाला देखा। अब मैंने आपको कहा कि 4 बड़ी कंपनियां जिनका मैंने जिक्र किया, तो वो कौन कौन सी कंपनियां हैं। एक डेलोइट के अंदर लगातार प्रेशर, ज़्यादा काम के घंटे को लेकर शिकायतें आ चुकी हैं और इसको लेकर बार बार अलग अलग एनालिसिस चल चुके हैं। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, PwC, इसके बारे में भी तरह तरह की खबरें फाइनेंशियल टाइम्स, गार्जियन, PwC में छप चुकी हैं। KPMG भी इस तरह की शोषक नीतियों के बारे में लगातार निशाने पर है। मैकिन्सी एंड कंपनी के भी बाकायदा ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स में इसके ऊपर आर्टिकल छपे हैं। बॉस्टन कंसल्टिंग कंपनी भी इसी तरह की कंपनी है, उसके ऊपर भी कई तरह के दबाव और उनके ऊपर भी कई तरह के सवाल उठ चुके हैं। मैंने आपको बताया था कि किस तरह से सरकार काम के घंटे बढ़ाने पर काम कर रही है, कानून में संशोधन किया जा रहा है और काम के घंटे 70 बनाने पर विचार हो रहा है। एक हफ्ते में 70 घंटे। और जब ये प्रस्ताव आया था तो साफ कहा गया था कि इस तरह की जो कंपनियां हैं और IT फर्म्स हैं, उनको फायदा दिलाने के लिए प्रस्ताव लाया जा रहा है। और ये प्रस्ताव लाने वाली कर्नाटक की सरकार थी, उसी की जिसके राहुल गांधी अभी उस वर्किंग कंडीशंस की बात कर रहे हैं, जिसके शशि थरूर कह रहे हैं कि हफ्ते में हम जो है 7 दिन ही काम कराया जाए, इसका कानून लेकर आएंगे, प्रस्ताव लाएंगे संसद में। तुम्हारी अपनी सरकार काम के घंटे बढ़ा रही थी, अभी हाल की बात है, उसके बाद आलोचना हुई किस तरह का। वो हमारे एक और वो नारायण मूर्ति साहब, वो भी 70-72 घंटे गाते रहते हैं। अरे तुम्हारा मन है तुम वहीं सो जाओ यार दफ्तर में, दूसरे आदमी ने अपनी जिंदगी नहीं बेची है, वो तुम्हारी कंपनी है। इसी तरह से जो वर्क का मामला है, मैं आपको बता रहा हूं वर्क लाइफ बैलेंस का दुनिया में हाल क्या है। नीदरलैंड में सिर्फ 31 घंटे महीने में, हफ्ते में काम करना होता है। हमारे भारत में 48 घंटे का कानून है और बार बार कोशिश होती है उसको 70-72 घंटे का कर दिया जाए। 60 घंटे 50 घंटे तो इन्होंने आम बना दिया है। 9 घंटे की शिफ्ट होती है न्यूज चैनल के अंदर और 6 दिन का वीक होता है। कर लीजिए जरा कितना हुआ, 54 घंटे, 48 घंटे लेबर लॉ के हिसाब से है। नॉर्वे में 33 घंटे, नीदरलैंड में 31 घंटे, जर्मनी में 34 घंटे है, जापान में 36 घंटे और सिंगापुर में 42 घंटे है। यानी आप सोचिए ये देश जो है वो ज्यादा देर तक खून नहीं पी रहे अपने कर्मचारियों का, तो क्या पिछड़ गए हैं? अगर ये अपने कर्मचारियों का खून नहीं पी रहे तो यहाँ, उनके यहाँ तो आबादी हमसे कम है, हमारे यहाँ ज्यादा लोग उपलब्ध हैं। हमारे तो 5 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, उसकी जगह 2 आदमी को नौकरी पर रखना चाहिए। बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। तो आप दशा देखिए, नीदरलैंड, नॉर्वे, जर्मनी, जापान, सिंगापुर, और सिंगापुर तो पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहां पर 62 घंटे 63 घंटे से ज्यादा, माफ लीजिएगा 42-43 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जाता है। जगह जगह कर्मचारी रिजाइन कर रहे हैं, कोई परचून की दुकान खोल के बैठ गया है। तो इस देश में जब कैपिटलिस्ट सिस्टम आता है, मैं फिर वहीं आ रहा हूं, जब पूंजीवादियों के चरणों में सरकार लौट जाती है, सरकार पूंजीवादियों की चरण चुंबक बनती है, तो के शेप रिकवरी आती है, जिसकी मैंने बात की। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। कई वीडियोस में मैं आपको बाकायदा डाटा दे चुका हूं। हालत यह है कि हिंदुस्तान का गरीब अब अपनी रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहा है। 50 लाख से कम का मकान खरीदने वाला कोई नहीं। 2 करोड़ 3 करोड़ के मकान इधर प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ओवर सब्सक्राइब हो जाते हैं, क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। भारत में 50,000 से नीचे की मोटरसाइकिल नहीं बिक रही है, 50,000 से ऊपर की धड़ाधड़ बिक रही है। और ये आंकड़े अभी हाल के सालों के आंकड़े हैं। एक जबरदस्त डिवाइड खड़ा हुआ है, अमीर के पास अमीरी अमीरी और बढ़ती जा रही है। हर नीति उसको और अमीर बनाने का काम कर रही है, गरीब आदमी गरीब पे गरीब होता जा रहा है। टैक्सों में छूट अमीर को दी जा रही है, और ये पूरी चीजें इस हद तक पहुंच चुकी हैं कि मेरे आपके बच्चों को, जिनको हमने पढ़ाया लिखाया, मेहनत से पढ़े, उनको मार रही है ये। आप एक बार सोचिए कि 15 से 20 हजार रुपए फीस देकर एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों को एक अच्छे पब्लिक स्कूल में पढ़ाता है। 12 साल 15 से 20 हजार रुपए की फीस देने वाला बच्चा 12 साल बाद जब बाजार में जाता है
और अगर उसने ये CA नहीं किया है तो उसको 15,000 ही तनख्वाह मिलती है, हद से हद 20,000 मिल जाएगी। और अगर उसने CA वगैरह किया है तो उसकी मौत ऐसी होगी कि जिसको डॉक्टर की सलाह पे आराम करने की भी छूट नहीं है, जो अपने माँ बाप से भी नहीं मिल सकता है और हार्ट अटैक से मर जाता है। ये एक बड़ा पहलू सोचने का है। जो भी पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो राहुल गांधी हैं, दूसरे लोग हैं, वो जो भी सहानुभूति दिखा रहे हैं, ये जमीन पे का जब बदलाव दिखे तभी माना जाना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कर्नाटक की इनकी सरकार 70 घंटे की बात कर रही थी। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये मसला आपको समझ में आया होगा। जब समझ में आएगा तो सोशल मीडिया पे 2 लाइन लिख दीजिएगा। मैं वीडियो फॉरवर्ड करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमेशा ये लगता है कि हर यूट्यूबर बोल रहा है मेरा वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, तो मैं भी बोल रहा हूं। 2 लाइन लिखिए, ये बात कहिए, इस चीज को मसला बनाइए। इस हिंदुस्तान में लड्डू में घी कैसा था यह मसला बन सकता है, मरते हुए बच्चे मसला नहीं बन रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद।